Today let's start spherical lenses. Spherical lenses. First we need to understand what is lens. Lens क्या होता है बच्चों बताओ? What do you mean by lens? Lens. A transparent spherical mirror. A transparent spherical mirror. How can it be mirror if it is transparent? Sorry, lens. Yes. So write down the definition of spherical lenses. Spherical lenses. Sir. Yes, beta. Is the board visible? Yes, sir. All right. So write down definition of spherical lenses. A spherical lens is a piece of transparent refractive material. A piece of transparent refractive material, ब्रैकेट लिख लीजिए, यूजुअली ग्लास. A transparent refractive material, usually glass, which is bound by two surfaces. Which is bound by two surfaces. Full stop. Often both the surfaces of lens are spherical. Means many times both the refractive surfaces of spherical lenses are spherical, but sometimes one surface may be spherical and another surface may be plane also. So spherical lens को देखिए कि it is a transparent refractive material whose two surfaces are refractive and are usually spherical. जैसे अब ये इमेज ले लिया जिसमें से एक इसकी ये सरफेस है और ये कैसी सरफेस है? स्फेरिकल. ये वाली सरफेस भी कैसी है? इट इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर. तो बोथ द सरफेसेस आर पार्ट ऑफ स्फीयर. सिमिलरली अनदर there can be like this, which has two refracting surfaces and both the surfaces are spherical. एक और पॉसिबिलिटी है कि एक सरफेस स्फेरिकल हो और दूसरी सरफेस प्लेन हो. ऐसा भी लेंस हो सकता है. लेंस ऐसे भी हो सकता है कि एक सरफेस में कॉन्केव हो और दूसरी प्लेन हो. ठीक. So this type of lens can also be there. So ये वाले जो lenses हैं in which both the surfaces are spherical are called spherical lenses. ये होते हैं spherical lenses in which both the refracting surfaces are spherical and this is partially spherical, partially plane. इसलिए इसको बोलते हैं प्लेनो स्फेरिकल. प्लेनो स्फेरिकल lenses. In which one surface is plane and another surface is spherical. Children, we will not discuss these type of lenses in class 10th. We will study only these two type of lenses. Yes. सर फर्स्ट और फोर्थ डायग्राम नहीं दिख रहा. क्यों? जेसिका अपने मोबाइल सर दिख रहा है. करके लैंडस्केप में देख तो दिखेगा. लैंडस्केप करके देखो. अपने मोबाइल पर चेक करो स्क्रीन को. जेसिका. यस सर. अभी दिखा? नो सर. क्यों? बाकी सबको दिख रहा है, आपको क्यों नहीं दिख रहा है? लैंडस्केप मोड पे रोटेट कर दो मोबाइल के स्क्रीन को, फिर दिख जाएगा सभी. मोबाइल स्क्रीन को रोटेट करो बेटा.
अगर आप फुल स्क्रीन पे देख रहे हो तो रोटेट करके देखो, हॉरिजॉन्टल रखो मोबाइल, करके देखो, वो आपकी साइड से मिस्टेक हो रही है। बाकी बच्चे सबको, जो लोग मोबाइल से यूज कर रहे हैं, उनको सबको पूरी स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. Yes, यस sir. सर, पूरी सही दिख रही है। जैसिका, इज योर प्रॉब्लम सॉल्व? Yes, sir. दिखने लग गया? Yes, Hmm. sir. All right. So, in class 10, we will study only spherical lenses which have both the refracting surfaces spherical. Either both are convex or both are concave. और जो प्लेनो स्फेरिकल लेंसेस हैं, जिसमें one surface is plane and another is concave or convex, this type of lenses will not discuss in class 10th. All right. Now children, एक चीज और देखिए, आप समझने की कोशिश करो, लिखना हम बाद में करेंगे कि a spherical lens is made up of two glass spheres. मान लीजिए एक ये ग्लास स्फीयर हो गया, ठीक है, और if there is another glass sphere which is fused together, when two glass spheres are fused together, then this common portion of both the spheres, if cut out, then it becomes as convex lens. अगर ये कॉमन स्फीयर को फ्यूज किया, दो ग्लास के स्फीयर्स हैं और दोनों स्फीयर्स को आपने क्या किया, फ्यूज कर दिया मेल्ट करके, तो उससे क्या हुआ, जो कॉमनली ऑक्यूपाइड स्पेस है, अगर आप उसको कट करके बाहर निकालते हैं तो दैट विल बिहेव लाइक अ कॉन्वेक्स लेंस। ये जो हाइलाइटेड पोर्शन, इसमें दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है, एक सरफेस से रिफ्रैक्टिंग सरफेस का हम P मान लें और दूसरे को हम क्या मान लें, Q मान लें या R मान लें। So this will have two refracting surfaces. The center of first sphere, ठीक है, this will be center of curvature of first sphere and this will be center of curvature of second sphere. So the center of curvature of first sphere is represented by C2 and the center of curvature of second sphere will be marked as C1. अच्छा, ऐसा क्यों किया, इसको C2 बोला पहले वाले को और इसको C1 बोला, ऐसा क्यों? उल्टा नहीं लग रहा आपको कि फर्स्ट वाले को C1 बोलना चाहिए, दूसरे वाले को C2 बोलना चाहिए? टेल मी, कुछ बोलो भाई, आंसर दो, मुझे डाउट है इसलिए मैं आपसे पूछता हूं। सर ये तो आपकी मर्जी से किया है ना आपने। कुछ डाल नहीं, दो। मैंने अपनी मर्जी सर से, कन्वेंशन होगा, मानते होंगे। मैंने किया तो अपनी मर्जी से है, लेकिन एक्चुअली होता ऐसा है, उसका रीजन बताऊं? बोलो, बताऊं कि नहीं बताऊं? सर ये तो नेमिंग लिख सकते हैं ना यहाँ पे तो। क्या बोला बेटा? सर ये नेमिंग है, नेमिंग में तो कुछ भी लिख सकते हैं ना? नहीं, कुछ भी नहीं लिख सकते। देखो, अब हमने अगर इसको यहाँ से कट कर दिया और कट करके इस स्फीयर को बाहर निकाल दिया, अब अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन द रे ऑफ लाइट मस्ट बी इंसिडेंट ऑन कॉन्वेक्स लेंस फ्रॉम द लेफ्ट साइड। ये तो आपने पढ़ा कि ऑप्टिक्स में सबसे बड़ा क्या है कि इंसिडेंट रे ऑफ लाइट शुड बी इंसिडेंट फ्रॉम द लेफ्ट साइड। अब इसमें से अगर ये लेफ्ट साइड से आती है रे ऑफ लाइट, ठीक, सो इट विल स्ट्राइक द फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस। फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस कौन सी होगी इसकी? P। और फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा दैट विल बी लेवल एज C1। ऑलराइट? Oh, yes sir. सिमिलरली जब ये इधर से, जब ये आपका C1 हो गया तो इस वाले सर्कल का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा? C2। डिपेंड करता है कि आपकी फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस कौन सी है। ये आपकी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आई कम फ्रॉम लेफ्ट साइड, इट स्ट्राइक द फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, so the center of first refracting surface P will be marked as C1 because this is first refracting surface, and then after refraction ये अब यहाँ से क्या हो जाएगी? ray of light either bend
टुवर्ड्स दिस नॉर्थ फोकस, ठीक है, पैरेलल रे आएगी, फोकस से पास होगी, वो अलग बात है। सो सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस कौन सी होगी, ये वाली Q। सो सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर इज मार्क्ड एज C2। इज दिस पॉइंट क्लियर नाउ? इज दिस मच क्लियर टू यू? Yes, sir. Yes, sir. ओके, यहाँ पे साइन कन्वेंशन लगा हुआ है, लेफ्ट साइड से ही लाइट आनी चाहिए, और जो पहली रिफ्रैक्टिंग सरफेस स्ट्राइक हुई उसका जो सेंटर होगा वो C1 होगा, जो दूसरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उसका सेंटर क्या कहलाएगा, C2 कहलाएगा। ऑलराइट, अब आगे हम चलते हैं इसी में। सो द इमेजिनरी which passes from C2 and C1। सर yes सर हम लोग जो पीस माना है ये सेंटर वाला, ये दो स्फेरिकल मिरर्स का पार्ट नहीं है? नहीं नहीं है। तो ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिव मटेरियल का मतलब क्या है? ट्रांसपेरेंट मतलब उसका कोई भी सरफेस पेंटेड नहीं है, ओपेक नहीं है, लाइट कैन पास थ्रू इट, देन ओनली रिफ्रैक्शन विल टेक प्लेस। तो ट्रांसपेरेंट फिर रिफ्लेक्टिव मटेरियल कैसे हो सकता है? मैं रिफ्रैक्टिव बोला हूं बेटा, रिफ्लेक्टिव नहीं बोला, आपको गलत लिखा होगा आपने, रिफ्रैक्शन वाला ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मटेरियल ये बोला था मैंने, ठीक है स्नेहा? ओके सर। वो सुनने में मिस्टेक हुई होगी, ठीक है, किस ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मटेरियल। अब रिफ्लेक्शन तो भूल जाओ, रिफ्लेक्शन की हम कोई बात ही नहीं कर रहे, हम जो भी बात करेंगे रिफ्रैक्शन की करेंगे, ठीक। ओके, तो दोनों सेंटर से जो इमेजिनरी रे ऑफ लाइट जाएगी थ्रू द सेंटर ऑफ द लेंस, दिस सेंटर ऑफ लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। जैसे मिरर में सेंटर को क्या बोलते थे, पोल, वैसे लेंस में क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर रिप्रेजेंटेड बाय C, और C1 is the center of curvature and this is again center of curvature C2. A ray of light which joins C2, C and C1 is known as principal axis। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब जब भी रे ऑफ लाइट, अब वो डेफिनेशन अलग से लिखवाऊंगा मैं आपको, ठीक है, C और ये जो यहाँ पे F होगा, ठीक, ये F क्या होगा, रे ऑफ लाइट इधर से आ रही है, ठीक, सपोज ये पैरेलल रे ऑफ लाइट आई और ये रे ऑफ लाइट इधर से पास हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो C है, ये C क्या होगा, C और F के बीच का जो, C और C2 के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, F1 और F2। कौन सा प्रिंसिपल फोकस है ये, F2. F2। दिस इज कॉल्ड F1 एंड दिस इज कॉल्ड F2, ठीक है। सो लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के केस में जो लेफ्ट साइड में फोकस रहता है उसको F1 बोलते हैं, और जो राइट साइड में फोकस रहता है उसको F2 बोलते हैं। कॉन्वेक्स लेंस में, कॉनकेव लेंस में इसका उल्टा हो जाता है, कॉनकेव लेंस में F2 इधर आ जाएगा, F1 इधर चला जाएगा। सर तो अब उसको F2 और इसको F1 क्यों नहीं बोला? ये डिपेंड करता है इसकी डेफिनेशन के हिसाब से, जब अभी मैं आपको डेफिनेशन लिखवाऊंगा प्रिंसिपल फोकस की आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप सिर्फ ये देख लो कि कॉन्वेक्स लेंस में जो F1 होता है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस वो लेफ्ट साइड में होता है, और सेकंड प्रिंसिपल फोकस जो होता है वो राइट साइड में होता है। इज दिस मच क्लियर? क्यों होता है वो मैं भी आपको बताऊंगा। अब डिस्टेंस सर हमेशा F1 F2 ऐसे ही होगा, लेकिन C1 C2 डिपेंड करेगा। हाँ, ओके, इसमें ये कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा ऐसे ही होगा, कॉन्वेक्स लेंस में C2 लेफ्ट साइड में होगा, F1 लेफ्ट साइड में होगा, और राइट साइड में F2 होगा और C1 होगा, कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा ऐसे ही होगा, ठीक है। अब F1 और C, ये C और F1 के बीच की जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ F1, ठीक है, और C एंड F2 के बीच की जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी कॉल्ड फोकल लेंथ F2, ठीक है।
फिर C और C2 के बीच की जो डिस्टेंस होगी, C और C2 के बीच में, that will be equal to 2F1, क्योंकि it is twice. Similarly, C और C1 के बीच में जो डिस्टेंस होगी, that will be called 2F2. वहां पे हम क्या लिखते थे, जिसको आज आप 2F1 लिख रहे हो, मिरर में लिख रहे थे R, रेडियस ऑफ कर्वेचर. यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं करते, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू ट्वाइस द फोकल लेंथ 2F1 के हिसाब से. लेफ्ट साइड में 2F1 होगा, राइट साइड में 2F2 इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेस. ऑलराइट, नाउ मैंने लिखवाया क्या था आपको, ये आपने रफ में लिख दिया होगा अपने अंदाज के लिए. अभी हमने आपको क्या लिखवाया था, देयर आर टू टाइप्स ऑफ, नहीं सिर्फ लिखवाया था स्फेरिकल लेंसेज की डेफिनेशन. Now write down types of spherical lenses. Types of spherical lenses. Write down. Spherical lenses are of two types. Spherical lenses are of two types. These are convex lens or converging lens. These are first convex lens or converging lens. Convex lens is also called converging lens. And the second type is concave lens or diverging lens. Convex lens or diverging lens. ठीक है, अब फर्स्ट आप लिख लीजिए कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस. राइट डाउन. Such a lens which is thick at the center. Such a lens which is thick at the center and thin at the edges. Thick at the center and thin at the edges. Which is thick at the center and thin at the edges. Like this. जो सेंटर पे तो मोटा है और एजेस पे पतला है. The two refracting surfaces P and Q. एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये हो गई P, दूसरी Q. The two refracting surfaces P and Q binding the lens are convex. Binding the lens are convex. That is bulging out. That is bulging out. So please repeat. Yes, the two surfaces P and Q binding the lens are convex, that is bulging out. All right. A convex lens is also called converging lens because it converges the rays of light falling on it. A convex lens is also called converging lens because it converges the rays of light falling on it.
जो भी लाइट रेज इसमें फॉल करती हैं उन लाइट रेज को वो पास में ले आता है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। Now next, second type is concave lens or diverging lens. Concave lens or diverging lens. ठीक, इसमें लिखिए सच a lens is thick at edges. Such a lens is thick at edges and thin at the center. And thin at the center. The two surfaces, two refracting surfaces, P dash and Q dash, binding the lens. इसको P dash कर लो. P dash, Q dash, binding the lens are concave. Concave का मतलब curved inward. Concave means that is curved inward. Curved inwards. A concave lens is also known as diverging lens because it diverges the rays of light falling on it. A concave lens is also called diverging lens because it diverges the rays of light falling on it. Next study, terms associated with spherical lenses. Terms associated with spherical lenses. देखो बच्चों, एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि स्फेरिकल लेंसेज से रिलेटेड जो टर्म्स हैं उनको समझना तो बहुत आसान है कि प्रिंसिपल फोकस कहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, अपर्चर क्या है, लेकिन इनको डिफाइन करने की जो लैंग्वेज है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए राइट द डेफिनेशन प्रॉपरली वर्ड टू वर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड सो दैट यू कैन राइट इन एग्जामिनेशंस। और इनमें से डेफिनेशंस जो है अपर्चर की या सेकंड प्रिंसिपल फोकस की, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस की, ये पूछी जाती है हमेशा कि आर यू एबल टू डिफाइन दिस पोजीशंस और नॉट इन केस ऑफ स्फेरिकल लेंसेस। ज्यादातर मिरर में नहीं पूछते ये पोजीशंस, लेकिन लेंसेस के केस में ये डेफिनेशंस पूछी जाती है। सो राइट डाउन फर्स्ट अपर्चर। Aperture of spherical lenses. The aperture of a lens is the diameter of circular edge of the lens. The aperture of a lens is the diameter of circular edge of the lens. In the figure below, AB, capital AB लिखना, AB is the diameter of circular edge of the lens. AB is the diameter of circular edge of the lens, which represents its aperture. ये जैसे हमने ले लिया कॉन्वेक्स लेंस, इसमें ये क्या हुआ, जो एज है स्फेरिकल एज, इस एज का डायमीटर हो गया ये, और डायमीटर को डिफाइन किया किससे, AB से। दिस AB इज नोन एज अपर्चर, ये हो गया अपर्चर। सिमिलरली कॉन्केव लेंस अगर हम लेते हैं, इनकी स्फेरिकल सरफेसेस होगी और स्फेरिकल सरफेसेस में
जो कर्व सरफेस है इनका ये डायमीटर AB। Sir, please repeat. Yes. So the aperture of lens is the diameter of circular edge of the lens. Aperture is the diameter of circular edge of the lens. All right. Then second definition, center of curvature. Center of curvature represented by C2 and C1। ठीक है, आप सिर्फ सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखो, C2 C1 ये सिर्फ फिगर से समझ लेना बस। A lens whether convex or concave has two spherical surfaces। A lens whether convex or concave has two spherical surfaces। Full stop। The centers of these spherical the centers of these spheres, the centers of these spheres are called center of curvature of the lens। The centers of these spheres are called the center of curvature of lens। They are represented by C1 and C2। They are represented by C1 and C2। Sir, please repeat. यार इतना धीमे बोलने के बाद ही बोल देते हो आप, रिपीट। The centers of these spheres are called सर center पिछली of, क्या हो गया? सर वो पिछली वाली लाइन, वो वाली लाइन तो हो गई। They are represented by C1 and C2। Sir, first line. Sir, a lens whether convex Lens whether convex or concave has two spherical surfaces। A lens whether convex or concave has two spherical surfaces। The centers of these spheres are called centers of curvature of the lens and they are represented by C1 and C2। ये देखिए, अब अगर एक रे ऑफ लाइट मैं एज्यूम करूं कि वो सेंटर ऑफ इससे ऑप्टिकल सेंटर जो इसका है लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, तो इसका रूल क्या कहता है? इट विल पास अनडेविएटेड। अभी आएगा आगे। When a ray of light is incident on a lens at its optical center, then it passes undeviated। और दूसरा, इधर से एक और मान लेते हैं इसी तरीके से, इधर से एक रे ऑफ लाइट आ गई, सिंपल सी बात है, और आपको ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, दिमाग जब लगाने का टाइम आएगा तब लगाइए, ठीक। और इससे जो ये रे ऑफ लाइट पास हुई प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक। अब प्रिंसिपल एक्सिस कॉन्वेक्स लेंस के केस में ये यहाँ पे मान लीजिए इसका क्या हुआ, सेंटर, पहले रिफ्रैक्टिव सरफेस कौन सी स्ट्राइक करेगी? फर्स्ट रिफ्रैक्टिव सरफेस। फर्स्ट रिफ्रैक्टिव सरफेस का सेंटर किधर होगा? इधर। सो वो क्या कहलाएगा? C1। ये है आपकी सेकंड रिफ्रैक्टिव सरफेस जहां मेरा हाथ चल रहा है, Q वाली रिफ्रैक्टिव सरफेस Q। ये P हो गया, ये Q हो गया। रिफ्रैक्टिव सरफेस Q विल बी द सेकंड रिफ्रैक्टिव सरफेस, उसका जो सेंटर होगा दैट विल बी C। ठीक है। सिमिलरली इस वाले में भी, इसको दोबारा बना देता हूं दूर करके थोड़ा सा। ये ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। अब इसमें देखो बच्चों कि फर्स्ट रिफ्रैक्टिव सरफेस ये है और इसका सेंटर किधर पड़ेगा? इधर। सो इट विल बी C1। दिस विल बी सेकंड रिफ्रैक्टिव सरफेस, ये सेकंड स्फीयर होगा,
इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा C2। ठीक, अब रे ऑफ लाइट विच passes through the optical center C passes undeviated, इधर से भी आप कर दीजिए passes undeviated like this। सो ये इसका C1 इधर होगा, इसका C2 इधर होगा, जबकि कॉन्वेक्स लेंस में उल्टा होगा। This axis will be principal axis, तो आपको पता ही है। All right. Next, principal axis. An imaginary straight line passing through. An imaginary straight line passing through an imaginary straight line passing through centers of curvature of two surfaces. Centers of curvatures of two surfaces of lens. Centers of curvature of two surfaces of lens is called principal axis of the lens. It's called principal axis of the lens. Then principal axis हो गया, इसके बाद next definition, optical center, fourth terminology, optical center. Optical center C. Right up. The optical center of lens is a point on the principal axis of lens. A point on the principal axis of the lens such that a ray of light passing through it goes undeviated. ठीक है, optical center of spherical lenses is represented by symbol, क्या लिखा है बेटा, undeviated, Sir, UN, undeviated, goes undeviated. Optical center of lens is represented by point C. Optical center of the lens is represented by point C. सर हम इसको ऐसा नहीं बोल सकते थे such that it is the center of the या mid point of the aperture of the lens. हाँ बोल सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है, कि ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए लेंस इज द मिड पॉइंट ऑफ अपर्चर और सेंटर ऑफ अपर्चर ऑफ द लेंस, ठीक है, ऑलराइट, yes sir. So next heading is principal focus and focal length of convex lens. Principal focus and focal length. Principal focus and convex. Principal focus and focal length. And focal length of convex lens. अब देखो बच्चों,
इसमें दो प्रकार के फोकस हो सकते हैं, पहले आप समझ लो फिर उसके बाद मैं बता दूंगा। एक कॉन्वेक्स लेंस यहाँ बना लीजिए, एक और कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, अब ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर। ध्यान रखना मिरर में सेंटर को P से रिप्रेजेंट करते हैं, पोल बोलते हैं इसलिए, और लेंस में C से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि उसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, और O से रिप्रेजेंट कर सकते हैं C या O से। ठीक है, अब इसमें देखिए कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट है, if there is a point size object kept on the principal axis and the ray of light, ठीक है, are striking this, दो ही लाइन बना लो या तीन बना लो, चार बना लो, कितनी भी बना लो चलेगा। ठीक है, ये रे ऑफ लाइट which are coming from the point size object kept on the principal axis, it will form, ये क्या हो गया इसका अपर्चर। जब आप रिफ्रैक्शन शो करो तो कहां से शो करोगे, अपर्चर से करोगे। सो इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। इट मींस when the object point size object is kept at a point such that its image is formed at infinity, then such the point size object kept on principal axis is known as first principal focus of convex lens. आइए समझ में, what is first principal focus of convex lens? The first principal focus of convex lens is assumed to be a point on the principal axis through which a point size object kept on the principal axis through which the rays of light which strike the convex lens form the image at infinity. Then this point on the principal axis is known as first principal focus of convex lens. Clear? Second के लिए उल्टा मान लेते हैं, when the object is kept at infinity, the rays of light coming parallel to each other and striking the convex lens. Then after refraction, they appear to देखो रिफ्रैक्ट कैसे होंगे, ऐसे होंगे, यहां से जाएंगे and they will bend and they will pass through a point on the principal axis, and this point where this refracted rays of light meet is known as F2 for convex lens. अब इसका मतलब क्या हुआ कि when the object is kept at infinity, its image is formed at a point on the principal axis. Image कहाँ बन रही है, principal axis पे, जिस point पे बन रही है, that will be called the second principal focus of convex lens. First वाले केस में क्या हो रहा है, image is formed at infinity but the object is point size and kept at focus, तब इसको हम क्या बोलते हैं, F1. This is the criteria how we decide which focus is called F1 and which one is called F2. ये F1 हो गया तो ये क्या हो गया इसका, ये है इसका C2, और इधर है इसका क्या है F2, इधर क्या है इसका C1. The distance between F1 and optical center, F1 small f से represent करेंगे, first focal length. The distance between optical center and the center of curvature, 2f1. Similarly, the distance between optical center and f2 is called f2, small letter center, focal length, and the distance between the optical center and the center of curvature is 2f2. Draw these figures.
Draw this figure, children. सर अगर Draw. ऑब्जेक्ट हमने पॉइंट साइज रखा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसकी इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है? हमें दिखेगी नहीं ना? नहीं, आपको इमेज दिखाई नहीं फिर? देगी। मतलब इमेज विल बी वेरी वेरी लार्ज, मैग्नीफाइड, टू मच मैग्नीफाइड। इमेज तो दिखाई देगी, ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी प्लेस्ड एट इंफिनिटी, लेकिन इमेज बहुत ज्यादा बड़ी दिखाई देगी। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की बहुत बड़ी इमेज दिखाई देती है तो हम समझेंगे कि वो ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है। हर केस में नहीं बोल सकते आप। जैसे मिरर में जब एनलार्ज इमेज बनती है तो अब एनलार्ज की लिमिट की बात है बेटा। ठीक है, अगर एनलार्ज एक लिमिट, एनलार्ज में कितना हो सकता है, छोटी इमेज भी थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, फिर और बड़ी, फिर और बड़ी, और बड़ी, और बड़ी, कितनी बड़ी होती जाएगी। वो इतनी बड़ी इमेज हो जाएगी कि आप उसको देख नहीं सकते, इसका मतलब इमेज आपको दिखाई नहीं देगी। When the image is not clearly visible to you, you can say that the image is at infinity. ठीक है? सर वो ये आपको कैसा है? क्या मतलब है? किसी चीज को आप बड़ा करते जाओ, बड़ा करते जाओ, बड़ा करते जाओ, देखो कितना बड़ा करो, इतना बड़ा कर दो कि वो आपको दिखना ही बंद हो जाए, तभी तो हम बोलेंगे इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इज टोटली अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, इट्स नॉट प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट। इन्फिनिटी कोई मेजर थोड़ी ना कर सकता है। सर वो दिख भी सर रहा है मतलब कि उसका पार्ट है ना, मुझे समझ नहीं पॉइंट आया। साइज ऑब्जेक्ट, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज इंफिनिटी में बन रही है, इसका मतलब दैट पॉइंट विल नॉट बी विजिबल टू यू। So the image won't be That's visible to us. ना, इमेज विल नॉट बी विजिबल टू यू, नहीं दिखाई देगी तो इसको इमेज। बोला कि दिखेगी इसका बहुत मतलब ज्यादा। द इमेज इज, मतलब अगर इमेज नहीं दिखती है तो वो फोकस पे है। हाँ, इसका मतलब ऑब्जेक्ट फोकस पे है और पॉइंट साइज का है। ओके सर, आ गया। नाउ राइट डाउन डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, सर अगर ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज नहीं होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? अब बहुत लार्ज साइज का ऑब्जेक्ट आप रख दो तो थोड़ा बहुत दिखाई देगा आपको। अब तो सर तो क्या इसीलिए मैग्नीफाइंग ग्लासेस कॉन्वेक्स मिरर के बनते हैं, क्योंकि मैग्नीफाई करके दिखती है उसमें। मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है वो क्या है, कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है? पहले आप ये बताओ। कन्वर्जिंग है। जब ऑब्जेक्ट को, कन्वर्जिंग। जब कन्वर्जिंग है। ऑब्जेक्ट और लेंस की पोजीशन कहाँ रहेगी, एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तब इमेज आपको मैग्नीफाइड बनेगी। लेकिन उसमें पोजीशन कहाँ होती है ऑब्जेक्ट की? फोकल लेंथ, मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता है। वो अभी करेंगे केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन। ठीक है चलो, सो इस 2:16 टाइम हैज एक्सीडेड, और ज़्यादा ही हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए विल बाइंड अप हियर and rest we'll study in the next class. You can sign out today.